we all know. We'll start with the newly shown Pakistan's first national security policy, which was given for 2022 to 2026. Pakistan's national security policy. Now we all know what Pakistan is going through. It is going through a very hard economic crisis, and its economy is in, let's say, uh, in the mud, and it is increasingly under the influence of China. So, and it is facing the pressure from its own people. So, what the most important two things for Pakistan right now is security along its borders and economy. Now we need to appreciate this fact that this is the first ever security policy of Pakistan. So it has done well in its part to join security aspect with the economic aspect, right? So also, would it be fine if we use it, if we use the language as English or Hindi and English combined? Is it fine with you guys? Sir, Hindi and English combined. Okay, that's fine. So when security and economy part are linked, so there are two major factors. Also, you guys will be taking running notes and no special notes will be provided to you. So kindly just utilize writing along with the whatever I'm writing on the board or whatever you understand from whatever I am speaking, right? So इन लोगों ने economic aspect को जोड़ दिया एक तो, which is very important, और economic के साथ साथ human security को जोड़ दिया. Pakistan has for long supported terrorism as a state policy, but उसकी वजह से क्या हुआ है कि उसके अंदर भी टेररिस्ट अटैक होने लग गए हैं. जैसे हम लोगों ने देखा था कि 2016 में स्कूल में अटैक हुआ था, जिसमें कई very unfortunate incident happened and many students, many children, they lost their lives. So they have joined economic security along with the human aspect of the security. Also, have you all written this thing? No, sir. No, sir. Please just write it. Running notes ही ले लेना यार, इतना कुछ important नहीं है. Understand कर लो और उसको जैसे जैसे आप यूज कर सकते हो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में या प्रीलिम्स में, वो मैं साथ साथ बताता रहूंगा. Just register this that thing in your mind and you can understand it. So can I erase it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us understand this from the geographical point of view because it matters. So पाकिस्तान का जो मैप है वो ऐसा है. यहाँ पे इसके ईरान लगता है, यहाँ पे अफगानिस्तान लगता है और यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन रीजन्स है वो है. Also if we understand, so this is the geographical boundaries that we know, जो कि होनी चाहिए, but ground situation we all know कि ऐसा कुछ नहीं है. This part of India has been taken by Pakistan forcefully and Kashmir issue हमारा pending है. So ये वाला जो part है ये तो bone of contention रहने वाली है. And as we all know कि पाकिस्तान का पूरा डिप्लोमेसी ले लो, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस ले लो, इंटरनल इलेक्शंस ले लो, सारे के सारे इन पार्ट्स के ऊपर फॉलो करते हैं. So there has been absolutely no change on its Kashmir issue. Absolutely no change in Kashmir issue. Pakistan maintains that this is an international issue और इस चीज को UNSC के रेजोल्यूशन से हमें सॉल्व करना चाहिए. Whereas if some student would try to explain, can you explain what is India's stand on it, on the Kashmir issue?
Students? Sir, India feels that area occupied Kashmir lies within the territorial boundary of India itself. And there's one Sir, more aspect. political viewpoint से sir, India wants to recapture its area. Sir, this is wrong. Actually, India does not want to restructure its area, whether internationally or politically or in any aspect. India maintains, please understand and appreciate that India maintains that Kashmir. Also, please understand this terminology and always use it like this only, even if you are writing in mains or you are going to the interview and then explaining that Kashmir is an integral part of India. Integral part along with the whole sovereignty, it is within India's jurisdiction only. So it is an integral part of India, and this has been the major bone of contention between India and Pakistan, right? So from Pakistan side, there has been no change in the Kashmir stance, and it maintains whatever its geopolitical channels have been recently and in the historical times. It is going to maintain the same stance, and same goes for us, right? Also, Pakistan has now in its security policy said that the line of control that it shares with India. What is the name of this line of control, by the way, if someone can tell me? Sorry? Radcliffe Line. Radcliffe Line. Good. Radcliffe Line. And also Radcliffe Line is present with one more country. Which is it? Sorry? Afghanistan. Bangladesh. Yes, yes. Bangladesh. India and Bangladesh, the border is also known as Radcliffe Line. Right? So, this is LOC and सर नेपाल नहीं हो सकता है? नहीं, नेपाल के साथ ट्रीटी ऑफ सगौली थी 1816, जिसके साथ हमारे इश्यूज अलग है. नेपाल और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? सो एक तो ये हो गई हमारी LOC और एक है ये पार्ट, ये जो है एक्स्ट्रा, दिस इज नोन एज वर्किंग बाउंड्री. ओके, सो ये जो वर्किंग बाउंड्री है और LOC में है, इसके साथ पाकिस्तान अपनी जो पॉलिसी है उसके साथ सीज फायर वायलेशंस हमारे अभी इस लास्ट फरवरी में हुए थे, सो उसके साथ हम लोग ये लोग मेंटेन रखेंगे. एंड द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ट्रेड. सर, सिक्योरिटी पॉलिसी में बोला गया है कि सीज फायर मेंटेन रखेंगे. यस यस, इट इज हैज बीन मेंशन. जो हमारे सीज फायर वायलेशंस है उसके ऊपर हम लोग स्पेशली ध्यान देंगे, और ये जो हमारी स्पेशल अटेंशन ऑन LOC एंड वर्किंग बाउंड्री, इट विल बी वर्कड एट द इंटरनेशनल लेवल विद इंडिया एंड अदर एक्टर्स, राइट? सो जो ट्रेड वाला पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज ऑल्सो मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस ओवरऑल सिक्योरिटी. सो जो ट्रेड वाला पार्ट है, इट वांट्स नॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रेड टाइज विद ऑल ऑफ इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया. ओके, सो ट्रेड ये सॉरी, Good evening, sir. या गुड इवनिंग. सो ट्रेड नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान चाहता है विद ऑल ऑफ इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया, right? So this was overall Pakistan's new security policy. Although it is not a very big let's say development in the international sphere or in India-Pakistan ties, however it signals some thaw in the relationships, which is yet to be seen how it plays out. So this was the new security policy of Pakistan. Can anybody tell me what is India's stance on its relationship with Pakistan? Have you all written this? Can I raise this? No, sir. Okay, just quickly make the map and just note it down. Meanwhile, can somebody tell me what is India's stance on relationship with Pakistan? Sir, could you please integral part in Hindi? Okay, sorry.
सो पाकिस्तान ये चाहता है कि जो ट्रेड हमारे टाइज है वो इंडिया के साथ बने रहे, और कश्मीर इशू में उसका कोई चेंज नहीं हुआ है। कश्मीर इशू में अलोंग विद द LOC और हमारा जो वर्किंग बाउंड्री है उसके साथ वो इंडिया के साथ और अपने इंटरनेशनल अदर एक्टर्स के साथ सेम इशू जैसे करता है वैसे ही करता आएगा। ये आप लिख लीजिए। और मीनवाइल कोई मुझे बताइए कि इंडिया का क्या स्टांस रहा है सर पाकिस्तान से डील करने में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अभी आप कट गए थे, मतलब कि आ नहीं रहा था आपका आवाज, तो मैं कुछ सुन नहीं पाया। अच्छा। पाकिस्तान ये चाहता है सॉरी, पाकिस्तान ये चाहता है कि ट्रेड को सिक्योरिटी से अलग रखा जाए, ट्रेड हम लोग करें, इकोनॉमिक्स हमारी अपनी जगह पे चलती रहे, जो हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरैक्शंस हैं, जो हम लोग अलोंग द LOC और वर्किंग बाउंड्री जैसे हम डील करते हैं वैसे ही हम डील करते रहेंगे। ठीक है? Excuse me, sir. हाँ जी। तो अब मुझे कोई बताइए कि इंडिया का क्या रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे डील करेंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट के टर्म में। ओके यस। बताइए कोई। Sir, I want to ask something. हाँ जी, बस पूछिए। So, can we say कि Pakistan just want to improve its trade and economic relations with other boundary countries? यस यस यस, उसने बोला है स्पेसिफिकली कि हम सब कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अभी एज यू ऑल विल बी नोइंग कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड रुका हुआ है। आफ्टर पुलवामा अटैक इंडिया ने अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन जो टैग होता है वो पाकिस्तान से ले लिया था। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली कभी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग नहीं दिया था, और इसकी वजह से अभी इन दोनों के बीच का ट्रेड रुका हुआ है। Okay, sir. हाँ जी। तो बताइए कोई, इंडिया का क्या स्टांस है पाकिस्तान से रिलेटेड। Sir, in my opinion, I think India just wants peace with Pakistan. ओके, दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और So it's like something that India would welcome Pakistan in every aspect, conditioned that it doesn't support terrorism. राइट, राइट, Sir, if India tries to improve their relations with Pakistan, it cannot happen only in one way. Pakistan also have to try that, but because of Jammu and Kashmir, Pakistan didn't do that. So I think in past 75 years after independence, India just want that Pakistan to be in their area and live peacefully and let India live peacefully. गुड गुड, it's a good analysis. So can I erase this? Yes, sir. So India Okay. wants that Pakistan does not support the terrorist groups like IS, and India wants the international organizations to recognize these groups as terrorist organizations. That is a different aspect altogether. I will explain it. Have you all written this? Yes, sir. ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया क्या सोचता है इसके बारे में। ओके, सॉरी। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडिया क्या सोचता है इसके बारे में। ऑफिशियली इंडिया ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इस सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, और टू बी फ्रैंक this policy, this new security policy is inconsequential from India's point of view. So सबसे पहले India has maintained that we want normalized relations with all neighbors. All neighbors including Pakistan. However, okay, however, terror and trade
cannot go together, cannot go hand in hand. Okay, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है, तो आप इनको वर्ड टू वर्ड ही लिखिए और वर्ड टू वर्ड ही कोट करेंगे, तो इट वुड बी बेटर एंड इट विल फेच यू बेटर मार्क्स इन एग्जामिनेशंस. So India wants normalized relations with all neighbors including Pakistan. However, terror and trade cannot go hand in hand. इसका मतलब ये है कि हम लोग चाहते तो सबसे अच्छा रिलेशंस है, वी वांट पीस एट आवर बॉर्डर्स, बट जो पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और जो बाकी की चीजें हैं वो हम लोग साथ के साथ नहीं करेंगे. जैसे यू हैव बीन नोटिसिंग हमारे जो बाकी करंट हैपनिंग्स है कि जो पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इट हैज बीन टेकिंग न्यू फॉर्म्स. आजकल ड्रोन अटैक्स होने लग गए हैं और ओपीएम ट्रेड उनके थ्रू बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है. ड्रग्स ट्रेड इंक्रीजिंगली हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा इंक्रीजिंगली यूज होने लग गया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अभी बीएसएफ की ज्यूरिसडिक्शन को 50 किलोमीटर और बढ़ाया था. ठीक है, सो दिस इज इंडिया स्टांस और इसमें कुछ फ्रैंकली चेंज करने वाला है भी नहीं और कुछ चेंज होगा भी नहीं. फाइन. Yes, sir. So can I erase this? Yes, sir. Yes, sir. Now understanding जो was the query of a student कि पाकिस्तान भी कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट नहीं करता. See, we need to understand कि जो टेररिज्म है ये कभी भी एग्री नहीं कर पाया हमारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल जो कंट्रीज है, इवन एट द यूएन, इवन एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, वी हैव नेवर बीन एबल टू एग्री व्हाट टेररिज्म रियली इज. ओके, फॉर सम हूथी रिबल्स जो है, जो कि बैक बैक ईरान है, और यू मस्ट बी रीडिंग कि यमन में बहुत एक्टिव है. ये हूथी रिबल्स जो है, काफी कंट्रीज इसको एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करती हैं, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगेन इसको एज अ एक्सट्रीमिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया, यूएसए एंड द लाइक्स ऑफ इट. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेट्स से जैश ए मोहम्मद, लेट्स से लश्कर ए तोयबा, ISIS, एंड इसमें जोड़ भी लेते हैं हम साथ में तालिबान. सो ISIS की आइडियोलॉजी ये है कि हम एक खुद का इस्लामिक स्टेट बनाएंगे एंड इट विल बी पैनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड. जो हमारा प्रेजेंटली वेस्ट एशियन रीजन है, इंक्लूडिंग ईरान, इराक एंड अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, उनकी टेरिटरीज. सो तालिबान एंड ISIS हैव नॉट बीन सीइंग आई टू आई, क्योंकि अगेन इनके इश्यूज मैच नहीं करते. जैश ए मोहम्मद, ISIS have not been with their relationships have not been good. Jaish e Mohammed and Taliban, they have somehow supported each other, but very limitedly, and Lashkar-e-Toiba as well. Lashkar-e-Toiba and Taliban, let's say that they have been brothers. So we need to understand कि टेररिज्म को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि टेररिज्म होता क्या है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तोयबा, दे हैव बीन पर्टिकुलरली वेरी डिजास्टरस फॉर इंडिया, बट वेस्टर्न कंट्रीज के लिए इनका कोई लेना देना नहीं है. थोड़ा बीच में हुआ था जब हमारा ओसामा बिन लादेन वाला इशू बीच में आया था और फिर वो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर शुरू हुई थी, बट नाउ दीज आफ्टर द डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन, इनके लिए ये लोग तो इनकॉन्सिक्वेंशियल हो गए. सो अगेन उनका उसके बाद सारा फोकस जो था आईसिस पे आ गया था. इंडिया ने भी IS इंडिया को ज्यादा तंग नहीं करता था, बट रिसेंटली साउथ इंडिया में इसके बहुत ज्यादा फुटप्रिंट बनने लग गया है. वी ऑल मस्ट बी रीडिंग न्यूज और हम लोगों को पता लग गया होगा कि IS is now a major issue for India, especially in the southern part. And Taliban, good old Taliban, we all know, इसके ऊपर तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरी नहीं है. So right, can we move forward? Yes, sir. Right. Excuse me, sir. Yes, please. So previously we had seen like news में भी देखा है कि Yes, sir.
they like US forces वहां से इराक से निकल गई थी ड्यू टू like ISIS I think it was almost to zero उनकी जो भी पावर्स थी तो सर Okay. ये like how much is it right sir और I may be wrong न्यूज़ में नहीं नहीं, देखिए ISIS का जो, जस्ट अ सेकंड, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया, इट इंक्लूडेड इराक, इट इंक्लूडेड सीरिया, इट इंक्लूडेड अ लिटिल बिट ऑफ जॉर्डन एज वेल। ये वाला जो एरिया था ये पूरा का पूरा ISIS ने कवर कर लिया था। पूरा का पूरा नहीं किया था, इसकी कुछ मेजर सिटीज इन लोगों ने अपने उसमें ले ली थी, अपने टेरिटोरियल कंट्रोल के अंदर ले ली थी, जिसकी वजह से ISIS का फुटप्रिंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसके जो इश्यूज थे वो देखे जाने लगे थे यूरोप में, जो कि सॉरी तो इसके इश्यूज यूरोप में देखे जाने लग गए थे, एंड देयर वाज रियल इशू फॉर अमेरिका एज वेल। तो उन लोगों ने अपनी इराक की फोर्सेस के थ्रू इसको यूज किया था, अलोंग विद द खोरासान फोर्सेस, जो हमारी रीजनल फोर्सेस थी इराक के अंदर, उसको इन लोगों ने यूज किया था। सो जैसे ही वो खत्म हो गया, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिकली जो हमारा फोकस था, जो कि मेनली ये मिडिल ईस्ट में था, लेट्स से वेस्टर्न नेशंस का या ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर जो हम बोलते हैं, वो मिडिल ईस्ट में था। अब वो जो फोकस है वो अब इधर आने लग गया। क्या है इस रीजन का नाम? South China Sea. साउथ चाइना सी। तो ये रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है, मतलब इसको भी ले ही लेते हैं साथ में। क्या नाम है इस रीजन का? South Asia. एशिया। Sorry, sir, you are not properly visible. Am I not visible? No, sir. Is the board visible? You are visible, sir. yes sir बोर्ड को देखो यार प्लीज। तो Yes, visible. तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, अब हमारा पूरा का पूरा फोकस मिडिल ईस्ट से उठ के इंडो पैसिफिक में आने लग गया है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नई मिलिट्री तो यूएस से या बाकी कंट्रीज कहीं से उठा नहीं लेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं वो उठा के अब यहाँ स्टेशन करेंगे। तो एनीवे यहाँ के जो हमारी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ थी वो यहाँ पे कम हो जाएगी, इंक्लूडिंग दैट ऑफ अफगानिस्तान। हमने प्रेजेंटली देखा कि अफगानिस्तान से सारे के सारे यूएस पुल आउट करके चला गया, तो यहां से उठ के अब सारे के सारे यहाँ आने वाले हैं। तो हमारा जो पूरा एरिया है या जो हमारा पूरा एरिया ऑफ कंसर्न है, हमारा जो भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इश्यूज होंगे वो सारा में आने वाला है। तो नेचुरली वहां से ट्रूप्स उठ के अब यहीं आएंगे। क्लियर? yes sir Yes, sir. एनी मोर डाउट्स इन दिस टॉपिक? हम अगले पे चले। सर Yes, बैक कीजिएगा सॉरी सर Okay. हेलो So next we have is state of forest report. कोई बताएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको देती है इस रिपोर्ट को? एनीवन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज द मिनिस्ट्री, साथ में ऑर्गेनाइजेशन भी है। इट इज गिवन बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। which comes under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay? Students, is it fine? yes sir Yes, sir. Right.
तो अब हम पुराना डेटा जितना हम लोगों ने रट रखा था उसको अब हम भूल जाएंगे और अब हमेशा नया डेटा हम लोग देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये है 24.72%। यानी इंडिया का 24.72% जो एरिया है वो अब फॉरेस्ट और ट्री कवर में आने लग गया। ओके, सो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट कवर क्या चीज है, ट्री कवर क्या चीज है, और टोटल फॉरेस्ट कवर और टोटल ट्री कवर क्या चीज है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज फॉरेस्ट कवर? सर फॉरेस्ट लैंड्स जहाँ पे फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट है। टेक्निकल डेफिनेशन पेपर में टेक्निकल डेफिनेशन लिख के आनी है भाई। एनीवन? Sir, where trees grows naturally. सॉरी? Sir, where trees grows naturally. नो 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 नो, ओके, आपने ये लिख लिया? कैन आई इरेज दिस? नो सर, ये लिख लीजिए प्लीज। 2 सेकंड सर। Sir, it is a land area which is covered by forest. नो नो नो, दिस इज जनरलिस्ट डेफिनेशन, एग्जाम में ये नहीं चलेगी, मैं बताता हूँ, नो प्रॉब्लम। जब आप लोग लिख लें तो बता देना, आई विल इरेज दिस। सर डन, आप रेस कर सकते हैं। फॉरेस्ट कवर, तो आई गिव यू वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन, आप उसको वर्ड टू वर्ड ही नोट कर लीजिए और वर्ड टू वर्ड ही इसको लिख लीजिए। प्लीज राइट, आई विल डिक्टेट। Yes, sir. Forest cover includes all areas Sir, दोबारा explain करना। I have not explained it yet, I am dictating the definition. Please write down the definition. Forest cover includes all areas Yes, sir. more than 1 hectare in extent. 1 hectare 1 hectare in extent and have tree canopy density and Tree have canopy. tree. Tree canopy density Okay, sir. of 10% or more. क्या होता है, I'll explain. पहले लिख लीजिए, of 10% or more. सॉरी सर हिंदी में भी बोल देंगे सर, साथ ही में Sorry, साथ। you're not audible. हेलो हाँ जी बताइए। सर, हिंदी में भी इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, I'll explain, पहले आप लिख लीजिए ना। हिंदी Tree में canopy लिख density सर एक of बार 10. दोबारा repeat करना। Forest cover includes all areas more than 1 hectare in extent and have tree canopy density of 10% or more in land use and legal status. Land use and legal status. तो ये है इसकी डेफिनेशन। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये होता क्या चीज है। ओके, Yes, sir. लेट्स से कि दिस इज ऑल ऑफ द इंडियाज एरिया, इसका रफली 24.72% is now in forest cover and tree cover including. So whatever the area in its legal and land use, जो कि फॉरेस्ट हो, रफली कोई देखो, कोई भी अगर पैच ऑफ लैंड है उसके अंदर फॉरेस्ट ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो वाले फॉरेस्ट एरियाज जिनमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया होना चाहिए मिनिमम, ओके, 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए मिनिमम, और ट्री कैनोपी डेंसिटी, लेट्स से कि किसी एक उसमें है और उसमें ट्रीज ऐसे ऐसे उगे हुए हैं,
ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है ये इस पूरे एरिया के 10% प्रोपोर्शन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, उस पूरे एरिया को हम लोग फॉरेस्ट कवर बोलते हैं या एक फॉरेस्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. गुड। सो हमारा जो पूरा टोटल फॉरेस्ट एरिया है इट वाज अर्लियर 22% और अभी ये हो गया 24.72%। इंडिया का गोल है कि हमें इसे 33% लेके जाना है। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री ये गोल है हमारा, जिसके लिए हमें ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे, एफॉरेस्टेशन वगैरह करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। ऑल्सो ये लिख लिया तो मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ऑल्सो जो कंट्रीज, कैन एनीबॉडी टेल मी कि पूरी कंट्री में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया? मध्य प्रदेश। गुड, मध्य प्रदेश। गुड। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द टॉप मोस्ट स्टेट जिसका सबसे ज्यादा है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, इस चीज को अलग से समझना कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ एरिया है, जैसे मध्य प्रदेश है हमारा, लेट से मध्य प्रदेश में सबसे इतना एरिया है लेट से, ठीक है, हो सकता है कि ये पूरे मध्य प्रदेश के एरिया का 40% ही हो। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इसको प्लीज लिखना मत एज अ डेटा। लेट्स से कि 40% ही हो, बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ये बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होगा। उसी तरह जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम है, मिजोरम का 85% ऑफ द एरिया इज फॉरेस्ट। तो अगर आपको परसेंटेज बेसिस पे देखना है तो मिजोरम में परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, which is 85%, but in absolute terms of area, in numerical terms मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ वगैरह आते हैं, और ये मिजोरम डज नॉट स्टैंड एनीवेयर। ओके, और जो ये डिक्रीज होना शुरू हुआ है, अब इंक्रीज हुआ है तो कुछ स्टेट्स में इंक्रीज हुआ होगा, कुछ स्टेट्स में डिक्रीज हुआ होगा, राइट? सो एक बार देख लीजिए कि कहां कहां इंक्रीज हुआ है और कहां कहां डिक्रीज हुआ है। पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है इसमें हमारा फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल डिक्रीज, पंजाब डिक्रीज, ठीक है, इस एरिया में डिक्रीज हुआ है, बाकी सारे स्टेट्स में इंक्रीज हुआ है। Sir, please tell once again. जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का बढ़ा है फ्रॉम 22% टू 24.72%। अब उसी तरह वो कुछ कुछ रीजन्स में इंक्रीज हुआ होगा, कुछ कुछ रीजन्स में डिक्रीज हुआ होगा। तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल है और पंजाब है, इनमें हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है, बाकियों में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चले आगे, इज इट फाइन? यस Yes, sir. सो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट द टॉपिक इज Excuse me, sir. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। Sir, यस प्लीज, sir, tree cover को explain कर दो एक बार। जस्ट Yes, sir. ट्री कवर कुछ नहीं है यार, ट्री कवर इज ट्री कहाँ कितने कितने हैं, कहाँ कहाँ है पूरे किसी भी एरिया में, ट्री कितना एरिया लेते हैं, दैट इज ट्री कवर। वो इट इज अ बेसिक डेफिनेशन। फॉरेस्ट कवर में आता है कि जो पूरे एरिया के अंदर ट्री कैनोपी की जो डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, बस वो फॉरेस्ट कवर में है। ट्री कवर तो मतलब जितना भी ट्री कवर हमारा एरिया कवर करते हैं, दैट्स इट। ये बेसिक डेफिनेशन।
Fine. Is it fine? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So next is Academic Bank of Credit. So as we all know, in 2020, government came up with the new education policy to generate skill of population which is ready for 21st century and 21st century needs of India. Okay, so इसके अंदर क्या envisage किया गया, जैसे presently क्या होता है, tell you, let's say this is college 1, college 2, college 3. अब इसके अंदर कुछ बच्चे हैं, इसके अंदर कुछ बच्चे हैं, इसके अंदर कुछ बच्चे हैं, जैसे प्रेजेंटली होता है। तो इस 4 साल के अंदर या 3 साल के अंदर हम लोग ये कोर्स खत्म करते हैं। उसी की तरह फिर कुछ इसमें बच्चे हैं, वो इसमें कुछ कोर्स करते हैं। लेट्स से कि मुझे फिजिक्स बहुत पसंद है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो या तो इंजीनियरिंग कर सकता हूं या जो हमारी बीएससी इन फिजिक्स होती है वो कर सकता हूं। लेकिन लेट्स से कि यार मुझे तो साइकोलॉजी भी पढ़नी है, लेट्स से कि मुझे तो साइकोलॉजी भी पढ़नी है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं पहले बीएससी करूं फिजिक्स में, उसके बाद मैं बीए करूं या एमए करूं साइकोलॉजी में। ऐसा तो मेरा पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाएगी, काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, वर्क फोर्स में कोई हमारा आ नहीं पाएंगे। इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ या तो फिजिक्स को ध्यान दे पा रहे हैं, फिजिक्स के ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, या सिर्फ साइकोलॉजी के ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, जो एक इंटीग्रेटेड यूज होता है। जैसे कोई साइंटिस्ट है, जैसे हमारे इसरो के चीफ होते हैं, इसरो के चीफ को फिजिक्स तो चाहिए ही चाहिए टॉप लेवल की, उनको अपना पूरा का पूरा इसरो की मैनेजमेंट भी तो करनी है, तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, किसी को एमबीए भी करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट, हमारी इसकी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट, उस सब के लिए साइकोलॉजी की भी बहुत जरूरी है, उस चीज के लिए हमें एमबीए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये प्रेजेंटली हो नहीं पा रहा है। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में what the government has envisaged is an academic bank of credit. Please focus on the word bank and credit. आप लोग अभी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से कि फिजिक्स के लेट्स से 4 क्रेडिट्स हैं एक सेमेस्टर में, फिर केमिस्ट्री के 4 क्रेडिट्स है एक सेमेस्टर में। तो उसी तरह अगर मुझे फिजिक्स और साइकोलॉजी पढ़नी है तो मैं एक कॉलेज में ये करूंगा जो फिजिक्स का बेस्ट कॉलेज होगा, मैं उससे ये पढ़ लूंगा एक साल में, अगले साल में मैं दूसरे कॉलेज में जाके साइकोलॉजी पढ़ लूंगा। दोनों के जो क्रेडिट हैं वो एक ऑनलाइन या डिजिटल बैंक में आ जाएंगे। बैंक क्या होता है, किसी भी चीज को कलेक्ट करने के लिए एक जगह होती है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट है वो ना कि किसी एक कॉलेज के सिस्टम में होने के बजाय एक डिसेंट्रलाइज्ड या लेट्स से सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक बैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज जो है वो सारे के सारे कॉलेज अपने डिसेंट्रलाइज्ड वे में उसे एक्सेस कर पाएंगे। और किसी को मेरी परफॉर्मेंस एज अ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस किसी को ट्रैक करनी है या एजुकेटर्स को ट्रैक करनी है, दे कैन डू इट वाया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। सो वी जस्ट नीड टू एनालाइज कि इस चीजों के हमें बेनिफिट्स क्या है। कैन आई रेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. Now please understand and appreciate कि ये टॉपिक एज इट इज मेंस में आ सकता है और प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा 10 मार्कर या इवन 15 मार्कर भी आ सकता है। सो इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो ये है कि मैं बच्चे अपने चॉइस का वो ले सकते हैं, सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, अपनी चॉइस की जो अपने इंटरेस्ट की फील्ड्स हैं उसमें जा सकते हैं, या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, जस्ट अ सेकंड, hybridization of education we can do,
ऑलराइट, प्रोफेशनल कोर्सेज हम लोग हाइब्रिड वे में ले सकते हैं, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स ले सकते हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट से क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स जो है या इवन दो मेजर पॉपुलेशन जो शेयर है हमारा, दे आर वेरी पुअर, ओके। सो कईयों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग पढ़ना तो चाहते हैं, बट लेट्स से कि किसी साल में उनके फैमिली की प्रॉब्लम्स हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। अब लेट्स से कि 3 इयर्स का बीए का कोर्स था, 2 साल पढ़ा किसी ने, 2 साल बीए कर ली, लेकिन 1 साल अब कर नहीं पाया, तो पूरी की पूरे बीए खत्म। अगर उसे बीए दोबारा करनी है तो फिर नए से फर्स्ट ईयर से फिर से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आने के बजाय बाद 2 साल के जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो तो हमारे बैंक में हो जाएंगे, और इसकी वैलिडिटी होगी 7 इयर्स। ये याद रख लेना, ये प्री में शायद पूछ सकते हैं कि 7 इयर्स वैलिडिटी होगी हमारे क्रेडिट्स की, जो भी हम कोर्सेज लेंगे, ठीक है। तो ये 7 इयर्स के लिए वैलिड होंगे, तो जब भी हमारी यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, हमारी बाकी की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, वी कैन अगेन गो टू अ कॉलेज, not the same college, some other college of our choice, we can go and we can complete our course and we can complete our degree, ठीक है। So multiple entry and exits are allowed, it will facilitate this. आगे चले, यहां तक क्लियर है सब? सर यस, बेनिफिट के नीचे जो लिखा है, लिखे हैं योर सर, वॉइस उसका इज हिंदी नॉट क्या क्लियर। होगा? हेलो यस, हेलो सर, बेनिफिट के नीचे जो लिखे हैं तो उसका हिंदी क्या होगा सर? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Hybridization. एजुकेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक कोर्स कोई और, एक कोर्स कोई और, मैं अपना खुद का एक कोर्स बना सकता हूँ एज पर माई चॉइसेस एंड माई प्रेफरेंसेस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट्स, ये आप जो हमारे सोशल इश्यूज का पार्ट होता है, ये आप टर्म उसमें भी यूज कर सकते हो, उसमें भी काफी यूज होती है, ठीक है। टाइम प्रेफरेंस मेरी है ऑल्सो। इसमें क्या है, लेट्स से कि विमेन जो है या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनकी हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत कम है, वी ऑल मस्ट बी नोइंग दिस, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने जो मैरिजेबल एज है उसको इंक्रीज किया गया है 18 ईयर से 21 ईयर्स। एक जो उन लोगों ने बताया था, इसका रीजन जो इन लोगों ने एक्सप्लेन किया था, वो ये किया था कि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स जो एनरोलमेंट रेशो है गर्ल्स का स्पेशली, वो बहुत कम है, क्योंकि दे आर मैरिड ऑफ एट अ वेरी अर्ली एज, और जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो पाती। अच्छा, एजुकेशन नहीं कंप्लीट हो पाती तो एक तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स है, वो डेवलप नहीं हो पाया। हमारी 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज विमेन। अगर हम 50% पॉपुलेशन को इनेबल ही नहीं करेंगे तो वो वैसे ही पिछड़ी रह जाएंगी, एंड अगेन इट विल लीड टू मेजर इश्यूज लाइक पेट्रियार्की एंड विमेन इश्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी अमंग अदर्स, ठीक है। सो एक तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स नहीं डेवलप हो पाया, दूसरा जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जो प्रेजेंटली अभी इट इज वेरी लो टू 18.5%, ये बहुत कम हो जाएगा। अब अगर कोई विमेन पढ़ ही नहीं पाई तो वो हमारी लेबर फोर्स में जो हमारे टेक्निकल जॉब्स होती हैं वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी जो सैलरीज है वो नहीं इंक्रीज हो पाएगी, अगेन इनकम इनइक्वालिटीज विल राइज। डू यू ऑल नो अबाउट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट? Sir, explain it. Okay. Yes. Okay, just a second. सर एक्सप्लेन कर दीजिए। लेट्स से कि हमारी नेशन की पूरी लेबर फोर्स में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग काम करते हैं हमारे पूरे देश में, 100 में से 81% मेन है, और बचे हुए जो 18.5 या 8, प्रेजेंटली इट इज 18.5%, 18.5% विमेन है। तो इससे क्या होता है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं हो पाता, हमारी जो विमेन है उनके सेफ्टी इश्यूज बहुत हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट द रेप केसेस एंड अदर सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैव बीन इंक्रीजिंग
उसका एक मेन रीजन ये है कि पूरी हमारी जो वर्कफोर्स है वो सेंसिटाइज नहीं है। लेट्स से कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी ब्लू कॉलर जॉब्स है, ब्लू कॉलर जॉब्स यानी जो कि वर्कर्स काम करते हैं हमारे फैक्ट्रीज में, उसमें विमेन पार्टिसिपेशन बहुत कम है। और जो कम होने की वजह से एक कल्चर डेवलप हो जाता है जिसमें कि लोग जो है वो सेंसिटाइज नहीं हो पाते टुवर्ड्स द विमेन इशू। एक मेजर उसका एग्जांपल ये है कि जो विमेन टॉयलेट्स हैं वो है ही नहीं हमारे। इट वाज आल्सो हाइलाइटेड वंस सुप्रीम कोर्ट में, आई गेस 10 और 15 इयर्स अगो, विमेन जजेस के वॉशरूम्स ही नहीं थे। सो जब जो नई जज जो आए थे उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था और फिर वॉशरूम्स, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में ही विमेन के लिए वॉशरूम्स नहीं है, तो what can we expect in schools, what can we expect in colleges, and what can we expect in workplaces, offices and other things. So is this understood, female labor force participation rate? Yes. Okay. तो जब आपको मेंस आंसर राइटिंग में एग्जांपल लिखना होगा ना इसका, तो you can join it this multiple entry and exit points with the issues of women as an example or as a separate point in itself will fetch you marks. Excuse me, sir. Yes, please. सर इन केस अगर हमारा गैप रह जाता है बीच में इन बिटवीन अ कोर्स और हम उसके बाद किसी न्यू कॉलेज में जाते हैं फॉर द एडमिशन, तो वो डिनाई भी कर सकते हैं? नहीं, ये चीज अप्लाई होने के बाद फिर नहीं हो पाएगा, फिर दे कैन नॉट डिनाई इट। मतलब उनको आपको एज अ लेट्स से 2 ईयर कर चुके और 3rd ईयर में जाना है, तो एज पर द सीट्स, लेट्स से कि कॉलेज में 30 सीट्स हैं और 30 के 30 स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, तब तो वो आपको डिनाई कर सकते हैं। बट अगर 29 सीट्स हैं और एप्लीकेंट्स लेट्स से आप ही हो एक अकेले, तो फिर आपको डिनाई नहीं कर सकते। प्रेजेंटली गवर्नमेंट ने सारे जो कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस पे रजिस्टर करने को बोला है ताकि ये चीज थोड़ा स्पीड अप हो जाए। पहले ये सिर्फ आईआईटीज और आईआईएम्स के लिए था, पर अब ये कंट्री के सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रोसेस शुरू हो गई है इसको करने के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। वन मोर बेनिफिट इज स्किल डेवलपमेंट। नेचुरली ही होगा ये, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। स्किल डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प करेगा। तो उसके बाद हो गया। और अभी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अपने एडमिशन्स के टाइम देखा होगा कि कुछ बच्चे थे सीबीएसई से, कुछ बच्चे थे स्टेट बोर्ड से, कुछ बच्चे थे आईसीएससी वाले। तो इन सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी मार्क्स की। बोला जाता है कि आईसीएससी वालों का 90% तो सीबीएसई वालों के 95% के बराबर होता है, स्टेट बोर्ड का 80% तो कुछ भी नहीं होता सीबीएसई वालों के सामने। तो ये एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरी कंट्री में। और ये चीज कॉलेजेस के लेवल पे तो और भी ज्यादा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस आप लोगों ने सुना ही होगा कि पैसे लेके नंबर दे देते हैं। इट हैज बीन अ मेजर इशू इन आवर एजुकेशन सिस्टम, राइट? तो जो हमारा यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्मिटी इन डिग्री, जैसे डिग्री ग्रांटिंग सिस्टम। अंडरस्टूड? यस सर। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट विल आल्सो लीड टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रेडिट सिस्टम। जो हमारे क्रेडिट्स होते हैं इसमें स्टैंडर्डाइज हो जाएगा नेशन वाइड, जिससे कि यूजीसी को या अदर बॉडीज को फायदा हो जाएगा। कैन आई इरेज इट? सर लास्ट पॉइंट प्लीज रिपीट करना जो आपने अभी बोला। It will lead to standardization of credit system.
सर इस हिंदी ये क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का? स्टैंडर्डाइजेशन। यस सर, स्टैंडर्डाइजेशन। चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हैं हम, यस एक सर। चिप्स का पैकेट होता है लेज, लेट से एक होता है बालाजी। जो लेज का हमारा ब्लू वाला पैकेट होता है उसका कोई स्टैंडर्ड होता है, उसी तरह बालाजी का कोई ब्लू वाला पैकेट होगा उसका भी कोई स्टैंडर्ड होगा, लेकिन दोनों में फर्क होगा। ठीक है, तो यानी अभी प्रेजेंटली जो चिप्स का स्टैंडर्ड है मार्केट में, इट इज वेरिंग। ठीक है, उसी तरह जो क्रेडिट जो देते हैं इंस्टीट्यूशंस, लेट से कि एक कॉलेज फिजिक्स के कोर्स को 4 क्रेडिट दे रहा है, दूसरा कॉलेज उसी के कोर्स को 6 क्रेडिट दे रहा है। ठीक है, तो वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो रखा, सेम स्टैंडर्ड नहीं है पूरे देश में या अलग अलग कॉलेजेस में। जब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन जाएगा तो जो हमारे कोर्सेज है विद जो उनका करिकुलम है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। फिर चाहे आप केरला की यूनिवर्सिटी में पढ़ो या पंजाब की यूनिवर्सिटी में पढ़ो, उसका स्टैंडर्ड सेम रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर, यस। नेक्स्ट है जो इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस है। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि फ्री ट्रेड क्या होता है, एफटीएस क्या होते हैं? Sir, 0% tariff सॉरी, between trade. Sir, 0% tariff. नो, So that does not restrict export and import. नो, एनीवन एल्स? सब कैपिटल एंड लेबर का फ्री मूवमेंट होता है जिसमें कोई टैरिफ नहीं लगता। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है। अब लेट से कि इंडिया है और यूके है। यूके बेचता है अपनी गाड़ियां, जो अपनी ये जैगुआर पहले होती थी, अब तो टाटा ने खरीद लिया उसे। जैगुआर बेचता था इंडिया में, इंडिया कहता था यार हमारे यहाँ पे गाड़ियां ऑलरेडी इतनी बिक रही है, मारुति जैसी कंपनीज है, महिंद्रा जैसी कंपनीज है, वो तो बेच नहीं पा रही। जैगुआर लेट से वहां पे आती है 10 लाख की, और यहाँ पे हमारी डिजायर वगैरह ही 10 लाख की आ जाती है। तो अगर किसी को 10 लाख में जैगुआर मिलेगी तो क्या वो 10 लाख में डिजायर खरीदेगा कभी? नहीं सर। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया डाल देगा इसके ऊपर 300% ड्यूटी। 300% ड्यूटी डाल दी तो ये ऑलरेडी कितना बन गई, 40 लाख की। ठीक है, तो ये जो है ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इसी तरह और भी बहुत बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है, अच्छा इंडिया भी अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भेजता है यहाँ पे, जो हमारा राइस है या व्हीट है, जो हमारे फ्लावर्स हैं या और भी बहुत चीजें इंडिया भी भेजता है यूके में, लेकिन यूके की खुद की भी तो इंडस्ट्रीज है, तो फिर यूके भी उसी तरह डालेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रेड है उसमें बहुत सारे इश्यूज आने लग जाएंगे। लोग बोलेंगे कि यार मैं 10 लाख अपना यहीं बेच लेता हूँ, कहीं और क्यों बेचना, और दोनों के बीच का ट्रेड रुक गया। ट्रेड रुकने से क्या हुआ, कंट्रीज को लॉसेस होने लग गए, टैक्सेस नहीं आए, और जो कंट्रीज की हमारी वो है कंपनीज है, एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है, उनको भी इश्यूज आने शुरू हो गए। तो इन लोगों ने बोला कि जो हमारे बीच अब ट्रेड होगा उसमें से कुछ हम एक लिस्ट बनाएंगे प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स की हम जो लिस्ट बनाएंगे, इन प्रोडक्ट्स पे हम लोग जो टैरिफ जो है हमारा उसको लेट से या तो 0 कर देंगे या मिनिमल रख देंगे कि 0.1% जो भी है एज इट इज वो हम रख देंगे। ठीक है, अच्छा ये अनकंडीशनल नहीं होता, इसमें कंडीशन होती है कि यार अगर बहुत ज्यादा आने लग गया तो उसके ऊपर फिर एक लेवल, एक लिमिट के बाद वो उस पर कोई भी कंट्री टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकती है। ठीक है, तो ये लिस्ट बनाती है जिसको हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, कि इन दोनों कंट्रीज के बीच जो भी ट्रेड होगा उसमें टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हम लोग 0 कर देंगे या बहुत ही कम कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो सबको ही पता है एफटीएस के बारे में।
इन दोनों में इस बार थोड़ा अलग क्या हुआ, या जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। या अर्ली हार्वेस्ट, यस, अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। इसको हिंदी में समझते हैं। अर्ली हार्वेस्ट मतलब उसके टाइम से पहले हम लोगों ने किसी भी क्रॉप को निकाल लिया, या फिर उसका पहले ही हमने डील कर लिया कि जब ये कटने का टाइम आएगा उस टाइम पे मैं तुझे बेच दूंगा, ठीक है। तो उसी को अगर हम ट्रेड के उसमें देखें तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम का मतलब हुआ कि हमारे पास अभी जो ट्रेड की नेगोशिएशंस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, उसको साल 1.5 साल लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ट्रेड तो हमें अभी बढ़ाना है, तो ट्रेड हमें अभी बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बना लेंगे। मान लो कि हमें 100 प्रोडक्ट्स पे एफटीए बनाना है। अब 100 के 100 पे तो हमें नेगोशिएशंस करने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी है, या हम लोग दोनों अभी इस टाइम पे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इनमें कोई इशू नहीं है, इनमें तो करना ही करना है। तो हम लोगों ने 10 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बना ली, उसको हमने अर्ली हार्वेस्ट स्कीम बता दिया। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम मतलब एक इनिशियल एग्रीमेंट या इनिशियल लेट्स से अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज कि इन चीजों में तो तुम लोग फ्री ट्रेड शुरू करो, बाकी का बाद में देखेंगे। इससे मेन फायदा क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू हो जाती है कि अगर इनमें शुरू हो गया और इनमें हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए तो बाकी चीजों में भी हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। So it leads to confidence building measures. Fine? Students, is it fine? Yes, sir. अर्ली हार्वेस्ट स्कीम होगी। इसके बाद एज वी ऑल नो कि एग्रीकल्चर जो है और डेयरी सेक्टर है वो इंडिया के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है, जिसकी वजह से इंडिया ने आरसीईपी भी ज्वाइन नहीं किया था, जो अभी चाइना और साउथ ईस्ट नेशन आसियान नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, वो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था। तो जो हमारे सेंसिटिव इशूज हैं, इंडिया और यूके ने ये एग्री किया कि जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज हैं, और इंडिया सेंसिटिव इश्यूज इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। दिस इज एन एग्जांपल, नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी बहुत सारे होंगे। तो इनके ऊपर हम लोग अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर हम लोग कंटेंशन बना के बैठ जाए और पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही ना हो पाए। अच्छा, ये हमने देखा है कि मतलब इन लोगों ने डिसाइड किया है कि एक्सक्यूज मी सर, सॉरी सर किसी का माइक शायद ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस हो सर रहा है। ये कोई Realme 5 Pro है सर, वो खुला हुआ है सर। प्लीज देख लीजिए और म्यूट कर दीजिए जो भी है। एक्चुअली सर ओवरलैप हो रही है, उसकी आवाज आपकी कम आ रही है फिर सर। सर कुछ देर बाद ना कट गया था, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैं समझ नहीं पाया उसे। किसका है? सारे तो म्यूट है। अभी हो गया होगा सर। सर अभी था सर। चलो ठीक है, हो गया ना। सर थोड़ा देर पहले मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाँ ठीक है, अब दोबारा बोल रहा हूँ। तो इंडिया और यूके ने इस चीज को एग्री किया कि हम 2020 या 2022 यानी इस साल के एंड तक हम लोग अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, और जो एक दूसरे के सेंसिटिव इश्यूज हैं उनका हम ध्यान रखेंगे और उनको हम लोग कंटेंशन नहीं बनने देंगे, ठीक है। यस सर। ओके, सो इसमें एक डेटा आप नोट कर लीजिए कि इंडिया और यूके के ट्रेड का डेटा क्या है। 2020 2021 ये जो ईयर्स थे वो ट्रेड के लिए इतने मतलब इतनी इजी से क्वांटिफाई हो नहीं पाया। तो 2019 में
रफली 50 बिलियन डॉलर्स इंडिया और यूके के बीच के ट्रेड था, ठीक है। और अग्री किया है हम लोगों ने, इंडिया और यूके ने, कि बाय 2030 हम इसे डबल कर देंगे टू 100 बिलियन डॉलर्स। ये डेटा आप लिख सकते हो, मतलब या तो कंक्लूजन में लिख सकते हो या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। प्री में तो आई डोंट थिंक ये आएगा, तो मतलब ये है कि इंट्रोडक्शन या आप कंक्लूजन अगर किसी डेटा से ऐड करते हो तो इट ऑलवेज वर्क्स इन योर फेवर। दिस इज फाइन, कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो मैं ये रेज कर दूं? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मुझे एक बात बताओ, एक नई गाड़ी आई है XUV 700, पता है आप लोगों को इसके बारे में? यस सर। यस सर। नहीं सर। किसी को पता है कि इसकी वेटिंग कितनी चल रही है? वेटिंग पीरियड नेक्स्ट ईयर तक है सर। रफली, हाँ नेक्स्ट ईयर तक है, 13 मंथ्स रफली। इसका मेन रीजन बता सकता है कोई, क्या है? सर बुकिंग्स एंड चिप्स की भी कोई कमी है गेस। डिमांड ज्यादा है। सॉरी सर जितना Demand डिमांड है उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई इस गाड़ी की। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये कंपनीज का एक वो होता है कि वो लोग 3 महीने तक इसकी वेटिंग दिखाते हैं, दिखाने के लिए कि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है। वो किसी भी टाइम उसको मीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन रीजन क्या है? सर कोई चिप्स है उसकी कमी होगी है सर। हाँ, किसी भी गाड़ी के अंदर किसी भी कंप्यूटर की तरह उसका एक सीपीयू लगा होता है, इसको ECU बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिट, ठीक है। तो जो ECU चिप्स होती हैं, तो जो हमारी चिप्स होती हैं, वो चिप्स की अभी ग्लोबल शॉर्टेज पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो हमारे डिसरप्ट हो रखे हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। चाइना की प्रोडक्शन कम हो गई है, ताइवान की प्रोडक्शन कम हो गई है, जापान की प्रोडक्शन कम हो गई है, और इंडिया में तो अभी वैसे ज्यादा है नहीं इनकी प्रोडक्शन। इंडिया वैसे डिजाइन के मामले में इसमें बहुत आगे है। ये क्या होता है कि इंडिया से डिजाइन होती है, साउथ कोरिया में या ताइवान में इनका जाता है डिजाइन, और वहां से फिर बन के आती है, ठीक है। आई एम सॉरी। तो जो हमारी ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज, इसकी वजह से काफी सारे सेक्टर्स इफेक्टेड है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे हमने भी देखा, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, मोबाइल डिवाइसेस है, बहुत कुछ है, ये इसकी वजह से हो रखे हैं। इसके रीजंस तो आपको पता ही है। तो इसमें इंडिया ने अभी रिसेंटली काफी सारे स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो इंडिया ने, ये हमें देखने की जरूरत है, ये एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर जो चिप शॉर्टेज है उसके रीजंस बताओ, और व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, कि इंडिया ने इसके रिलेशन में क्या किया है, और या फिर फ्यूचर में क्या करने की सोच रहा है। अच्छा, अब इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है, तो इंडिया क्या इसको करेगा? इंडिया नेचुरली क्या करना चाहेगा? मैंने सुना नहीं, एक बार आप रिपीट कर देना प्लीज। इंडिया में चिप्स की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा है नहीं, तो इंडिया उनको प्रोड्यूस करना चाहेगा, ठीक है। Yes, sir. इसको एक इंडस्ट्री की तरह पढ़ते हैं, प्रोड्यूस करना चाहेगा। अब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए उसको डिजाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिजाइन करने के बाद, प्रोड्यूस करने के बाद उसको सप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हमारी लोकल मार्केट्स में ही नहीं, बाहर की एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी। तो इन्हीं तीनों, आप जब पेपर में लिखेंगे तो ये एक डायग्राम सा बनाया ना, उसमें बाद में दिखा देना कि डिजाइन के लिए इंडिया ने क्या किया, प्रोडक्शन के लिए क्या किया, और फिर सप्लाई के लिए इंडिया ने क्या किया। तो जैसे डिजाइन के लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आई है, डिजाइन लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम, जैसे हमारी PLI चल रही है उसी तरह डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है, जिसमें हम लोग जो कंट्री डोमेस्टिक कंपनीज हैं या डोमेस्टिक स्टार्टअप्स हैं उनको ट्रेन करेंगे और उनको ट्रेन करके हम लोग उनको इंसेंटिव देंगे कि तुम्हारा जो भी अगर डिजाइन कोई कंपनी उठाती है या कोई इंडस्ट्री उठाती है, सो वी विल प्रोवाइड यू इन प्रोपोर्शन जो भी तुम्हारा इंसेंटिव होगा। ठीक है, अच्छा अब डिजाइन में हम लोगों ने बना दिया तो हमें अब वो प्रोड्यूस भी करनी है। प्रोडक्शन के लिए हम ले आए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये तो आपको पता ही होगा, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर पिछले साल PLI स्कीम्स आई थी फॉर ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, यस सर। हाँ अब ये प्रोड्यूस हो गई, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि यार हमें तो पूरी मतलब कट थ्रोट कंपटीशन है, पूरी वर्ल्ड में सप्लाई करना है और बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन रिलेटेड हम लोगों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप करी विद ताइवान एंड साउथ कोरिया भी। साउथ कोरिया से बहुत लिमिटेड रिलेशंस इस मामले में हमारे रहे हैं सेमीकंडक्टर चिप से लेकर, बट ताइवान इज द मेन कंटेंडर। तो ताइवान के साथ हम लोगों ने हमारी पार्टनरशिप करी, जिससे कि हमारी वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन भी वर्ल्ड क्लास हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ हो। और सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे, और या फिर बाकी कंपनीज जो है जैसे सैमसंग है वो यहाँ पे प्रोड्यूस, अभी नोएडा में उसने अपना वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मोबाइल प्लांट लगाया है, आई गेस 2018 में या 2019 में वो फंक्शनल हो गया था। तो फिर वहां से सप्लाई साइड जो है वो मार्केट ध्यान दे देगी। गवर्नमेंट का इसमें सिर्फ ये है कि हम बस सपोर्ट करेंगे, बाकी कंपनीज खुद बनाएंगी, जिससे कि जॉब्स अच्छे से क्रिएट हो पाएगी। और जो हिस्टोरिकल इंडिया का रहा है कि हम लोग वो जो सोशलिस्टिक टेंडेंसीज रही है कि सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे, वो चीज इसमें इशू नहीं डालेगी अभी। ठीक है, यस सर। इसको आगे चले। यस सर। नेक्स्ट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसको एज अ हम टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, जल्दी से 5 मिनट में खत्म कर लेंगे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो ये कैन एनीवन टेल मी कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या ऐसी एग्जीक्यूटिव बॉडी है? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ये चीज। सॉरी सर, कैन यू रिपीट? जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्या है वो? Statutory organization. Good. It is a statutory organization under Food Corporation Act 1964. ठीक है, इसके 3 मैंडेट्स हैं मेनली। एक तो है कि प्राइस सपोर्ट देना है फार्मर्स को, जो हमारे प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस हैं उस पे ध्यान रखना है हम लोगों को। फार्मर्स को जो सडन डिक्रीज इन प्राइसेस होती है ड्यूरिंग हार्वेस्ट सीजन, उस पे फर्क ना आने पड़े। सेकंड इज जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पे हम लोग सपोर्ट करें अंडर, और अभी रिसेंटली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर हम जो 80 करोड़ पॉपुलेशन को फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं एट अ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट, तो उसके अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को के अंदर ये हेल्प करे। और थर्ड इज, आप इतना लिख लीजिए एक बार, सर पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना। कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसको हेल्प करना है। जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर हमें रफली 2/3 ऑफ पॉपुलेशन यानी 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन which roughly goes to 2/3 of overall population हम लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना है, जो कि रफली 80 करोड़ पॉपुलेशन आते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इज समवट अराउंड 130 करोड़। तो हम लोगों को इतने लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करनी है। तो ये चीज भी FCI के अंडर आती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
ठीक है। सो थर्ड इसका जो मैंडेट है वो ये है Sir, कि please explain first one again. प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस। जब हार्वेस्ट सीजन होता है तो क्रॉप्स की डिमांड, जो सप्लाई है मार्केट में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। उस चीज से फार्मर्स को या प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए एफसीआई जो है वो प्राइस सपोर्ट देगा, जिसको हम लोग आजकल एमएसपी के नाम से जानते हैं। एमएसपी इज एन एग्जाम्पल, सिर्फ एमएसपी ही मत सोच लेना इसको या वो कर देना। एमएसपी इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। Yes, sir. ठीक है। और तीसरा है कि जो हमारा ऑपरेजेस में, ये इसका थर्ड मैंडेट है, ठीक है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है, इसमें किसी को इशू है? नो सर। Sir, एक बार explain कर दो please. एक बार रिपीट कर दूं? एफसीआई जो है वो Sir, स्टैट्यूटरी third ऑर्गेनाइजेशन। point explain कर दो please. थर्ड पॉइंट जो ऑपरेशनल और बफर स्टॉक बना के रखना है। जब कोविड का पहली बार आया था हमारी इसमें मार्च 2020 में, जब लॉकडाउन लगे थे, तो ये फियर था कि जो लोग हैं, इतना हंगर सिचुएशन है, वो खाना कैसे खाएंगे सारे के सारे। तो उस टाइम पे ये देखा था कि जो एफसीआई के पास स्टॉक पड़ा हुआ है राइस का, वीट का और मिलेट्स का, बाकी फूड ग्रेन्स का, वो 3 से 4 साल का स्टॉक पड़ा हुआ है। यानी अगर आज हम लोग कुछ भी उगाना बंद कर देते हैं वीट और राइस में और कुछ मिलेट्स के अंदर, तो हमारे पास 3 से 4 साल खाने के लिए खाना पड़ा हुआ है, ठीक है। वो है ऑपरेशनल और बफर स्टॉक, ठीक है। Yes, sir. कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. ओके। तो अब एफसीआई में हमें रिफॉर्म्स लेके आने हैं। रिफॉर्म से सबसे पहले हम समझते हैं कि एफसीआई में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ये आप इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे और उसमें नोट्स आप इकोनॉमिक्स में बनाना। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप बस समझ लेना, नोट मत करना इसको, ठीक है। तो एफसीआई में प्रॉब्लम ये है कि करप्शन बहुत हाई लेवल की है। करप्शन बहुत हाई लेवल की है क्योंकि इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा है। उसके बाद जो हम लोग सिस्टम अभी यूज करते हैं, सिस्टम वो है वो बहुत पुराना है, और क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी वो है जो कि मेनली रूरल एरियाज में फंक्शन करता है, तो जो हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, जो आईटी इंफ्रा है, वो ज्यादा इसमें यूज नहीं होती है आज। और जो हमारे ट्रक्स है या हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी जो सप्लाई चेन्स है, वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि हम लोग एक फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर इसको एफिशिएंटली पहुंचा पाए। एक बार मुझे बताना, आप लोगों को एफसीआई या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्लासेस में पढ़ा दिया गया है क्या? सर अभी नहीं पढ़ाया। नहीं, अभी तो नहीं ज्वाइन पढ़ाया? हुआ हूँ सर। अभी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ सर, 2-3 दिन हुआ है। कोई बता सकता है पढ़ा लिया या नहीं पढ़ाया? सर अभी नहीं पढ़ाया एफसीआई या पब्लिक अभी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं सर। अच्छा, नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, जब आप उसको पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाना, ठीक है। तो जो ये प्रॉब्लम्स है, करप्शन बहुत ज्यादा, इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा, डिजिटल टेक्नोलॉजी इसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं होती है। ऐसा होता है कि फार्मर्स अपना ट्रक भर के अंदर लाते हैं राइस, वीट या और भी क्रॉप्स का, वो एफसीआई के गोडाउन में जाके पटक देते हैं और बोलते हैं कि इसके जो भी एमएसपी चल रहा है हमें प्राइस दे दो, और उससे जो भी इश्यूज चल रहे हैं मतलब वो एफसीआई फिर आगे देखता है क्या होगा। अब एफसीआई का गोडाउन होता है, ये ऑफिस है, ये पूरा बाहर का एरिया है, लेट्स से ये गेट है, ये खुला एरिया होता है, वो सारी ग्रेन्स जो है वो यहीं पटक देते हैं। अब धूप के अंदर, पानी के अंदर, बारिश के अंदर वो ग्रेन्स खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, जो भी इश्यूज है वो हो जाती हैं। तो हमें इस चीज का सॉल्यूशन निकालना है। तो जो इसका सॉल्यूशन जो है वो हम बहुत क्विकली डिस्कस एक बार कर लेते हैं, डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा देंगे। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि हमें करप्शन को इसमें कम करना पड़ेगा। करप्शन कम करने के लिए हमें ऑफिसर्स के डिस्क्रेशन को कम करना होता है कि वो कोई भी ऑफिसर अपने लेवल पे अपने मन से क्या डिसीजन ले सकता है, वहीं पे करप्शन होती है। वहां पे हम जितनी करप्शन कम कर सके उतना ही
हम लोग जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके इश्यूज को कम कर सकते हैं। और जो पब्लिक परसेप्शन है उस पब्लिक परसेप्शन को हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं यार इतना भी इनएफिशिएंट नहीं है या इतने भी इश्यूज नहीं है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं और विद सब्सिक्वेंट टेक्नोलॉजीज इसको हम लोग और ठीक कर देंगे। सेकंड इज कि एंड टू एंड जो हमारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं, एंड टू एंड सॉल्यूशंस लगाने जरूरी है। जब एफसीआई के गोडाउन के अंदर कोई भी ग्रेन आई, वहां से लेकर जब शॉप्स तक गई, अगर हमने ये सही से ट्रैक कर लिया कि कौन सी ग्रेन कहाँ गई, किसके पास गई, किस बेनिफिशियरी के पास गई, कहीं वो किसी होलसेल प्राइस शॉप्स में लीक तो नहीं हो गई, जब हम ये कर देंगे तो करप्शन ऑटोमेटिकली इसको हम कम कर देंगे। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं एज एन एग्जांपल, पेपर में आप लिख सकते हो जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नंबर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आई होप यू ऑल नो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज है। नो सर। आप इसको डिटेल में अपने साइंस के लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। आप, मैं, कोई भी बैठ के इसका टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है। गोडाउन में भी इसको यूज कर सकते हैं, शॉप्स में भी यूज कर सकते हैं, लोग भी यूज कर सकते हैं अपने अपने एंड पे, जिससे कि और जो सारा ट्रैकिंग है वो सारे के सारे क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी से यूज होती है। इसको डिटेल में आपको साइंस में समझा देंगे, उसकी आप ज्यादा चिंता ना कीजिए। तो बस आप ये लिख लीजिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वी कैन यूज इन एंड टू एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। और एक और है, वो भी आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कि जो हमारे बैग्स होते हैं ना, जैसे बोरियां होती हैं राइस की या व्हीट की, उसको अगर हम क्यूआर कोडिंग कर दें, लिख लो यहाँ पे एग्जाम्पल, QR कोडिंग ऑफ बैग्स। बैग्स पे QR कोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज को रोक लेंगे। एक डेटा इसमें आप याद कर लीजिए, वो डेटा आपको फायदा आ जाएगा कि जो लीकेजेस हैं प्रेजेंटली, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारी एफसीआई की या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की लीकेजेस हैं, अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज रफली 46%। यानी अगर हम लोग 100 kgs पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो 46 kgs इज गेटिंग वेस्टेड या फिर इज बीइंग डाइवर्टेड टू अदर कंट्रीज, सॉरी कंट्रीज नहीं, अदर शॉप्स या अदर मार्केट्स, वो अपने बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पा रहा है। 46% लीकेजेस है, विच इज अ वेरी हाई लीकेज, यू मस्ट बी नोइंग। और यही है हमारी गुड ओल्ड करप्शन का रीजन, ठीक है। और एक और है जो बाकी की चीजें यूज होती हैं कि हम लोग जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की या फूड प्रोक्योरमेंट की, उसे हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। जैसे यूएसए का मॉडल, इट इज वेरी गुड, इट इज अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल, स्टेट्स उसे यूज करते हैं, बट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे इसमें प्रोक्योर करती है। चलो हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट करने का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स के लेवल पे करप्शन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, डेटा ही याद कर रहे हैं तो एक और डेटा लिख लीजिए कि कॉस्ट क्या होती है। ये चीज आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फर्क डालती है। 2019 की जो कॉस्ट है राइस और वीट की फॉर एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वीट के लिए है 27 रुपीज पर केजी और राइस के लिए है 37 रुपीज पर केजी। तो आप देखिए कि अगर पूरी हैंडलिंग की ही इसको राइस की 37 रुपए एफसीआई को देना पड़ रहा है 1 kg का, तो लोगों को देने में फिर या मार्केट में लेने में ये चीज कितनी महंगी हो जाएगी। मेन कंट्रीब्यूटर वैसे तो इसका एमएसपी वाला इशू है, बट वो आप इकोनॉमिक्स में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वो जब एमएसपी या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको समझाएंगे तो वो डिटेल में समझाएंगे। इसमें बस ये देख लो कि 2013 और 14 में जो इनकी राइस और वीट की हमारी कॉस्ट थी वो थी 19 रुपए और 26 रुपए।
इसका बढ़ने का मेन कारण ये है, इसका बढ़ने का मेन कारण ये है कि जो एमएसपी है वो ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, ड्यू टू पब्लिक प्रेशर, और जो हमारे फार्मर यूनियंस है वो इतना प्रेशर डाल डाल के गवर्नमेंट पे या गोइंग टू द इलेक्शंस एज वेल, इसको हम लोगों ने इतना इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इससे हमारी और प्रॉब्लम्स आ जाती है जो आपकी इकोनॉमिक्स में और अच्छे से पढ़ाएंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, फिस्कल इम्बैलेंस गवर्नमेंट का हो जाता है, या हम लोग जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके ऊपर अच्छे से नहीं दिखा पाते, हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते। ठीक है, ये हो गया, तो आगे चले। यस सर। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, नेक्स्ट एक चीज है जो कि हम लोगों को मतलब जस्ट एक रनिंग नोट्स आप ले लेना इसका, वन हेल्थ इनिशिएटिव। ये इसका डायग्राम बना लो एज इट इज चेपाना। कोई बता सकता है वन हेल्थ में क्या क्या 3 चीजें हैं? कैन एनीबडी टेल मी वन हेल्थ जो इनिशिएटिव है उसमें क्या क्या चीजें हैं? सर Sir, एनिमल हेल्थ, environment. एनिमल Sorry? हेल्थ, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एंड एनवायरमेंट हेल्थ। गुड, ये WHO का कॉन्सेप्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसने बोला है कि एनवायरनमेंट, ह्यूमन और जो एनिमल हेल्थ है वो लिंक्ड है आपस में, तीनों चीजें। अगर किसी भी एक की हेल्थ पे इशू होती है तो बाकियों की उस पे भी होगी, या बाकियों के जो फैक्टर्स हैं वो भी होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कोविड-19 है। एनिमल हेल्थ जो बैट्स हैं उनकी वजह से ह्यूमंस पे आया है, और अगेन ह्यूमंस के एक्शंस की वजह से एनिमल्स भी इनकी भी क्वांटिटी कम होती जा रही है और एनवायरनमेंट की क्वालिटी भी कम होती जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली हेल्ड जो डेवोस एजेंडा था, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डेवोस एजेंडा क्या होता है। डेवोस एजेंडा में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये वन अर्थ, ये लिख लेना, ये आपके फायदा देगा इसमें एनवायरनमेंट की आंसर राइटिंग में, या डेवोस एजेंडा वन हेल्थ इनिशिएटिव, ये प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है। वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, ये स्लोगन टाइप है, स्लोगन ही सोच लो इसको। वन अर्थ वन हेल्थ का एजेंडा दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और इसका एक एग्जांपल है कोविड-19 और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ये मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. तो इसके अंदर P3 अप्रोच दी है प्राइम मिनिस्टर ने, इसको कोट कर सकते हैं आप बड़े अच्छे से। P3 अप्रोच दी है, प्रो प्लैनेट पीपल, कि जो लोग हैं उनके एक्शंस हैं दे नीड टू बी प्रो प्लैनेट, जिससे कि हमारा जो वन हेल्थ इनिशिएटिव है, एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, डिजीजेस है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, वी कैन टैकल इट विद द P3 अप्रोच। इसको आप एसए में भी यूज कर सकते हैं, एसए भी बहुत आजकल बहुत सब्जेक्टिव आने लग गए हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। मतलब पढ़ के लगता है कि यार बहुत मुश्किल चीज है, बट देखो तो आपके पास लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हो, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो इट गिव्स यू मोर स्पेस टू राइट, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो ये प्रो प्लैनेट पीपल, ये चीज आप बहुत एक्सटेंसिवली अपने आंसर राइटिंग में इसको मेंशन करना, इट इज गोइंग टू फेच यू गुड मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डेवोस एजेंडा? Davos agenda is referred to by one organization which is World Economic Forum. Davos is a city in Switzerland. Yes, Switzerland. WEF का जो हेडक्वार्टर है, ये क्वेश्चन आ जाता है यार ये प्री में, ध्यान रखना,
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनीवा में। अगेन जिनीवा इज इन स्विट्जरलैंड, डेवोस इज ऑल्सो इन स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस एजेंडा है, डेवोस सिटी में इनकी मीटिंग होती है जिसमें कि ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं, लेट्स से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कंट्री के हेड्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, या जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन सबको बुलाया जाता है। और ताकि जो हमारा जो इंटरनेशनल एजेंडा सेटिंग है, इंटरनेशनल पॉलिसीज है, उसमें सारे सेम फुटिंग पे काम कर सके। बस इसको ये समझ लो और समझने की जरूरत नहीं है इसमें। इज इट फाइन? और लिखे आगे चले। सर एक Yes, बार sir. एक्सप्लेन कर दो प्लीज। सर एक बार फिर से डेवोस एजेंडा explain या करना सर। P3 अप्रोच? दोनों सर। सर दोनों। P3 अप्रोच हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डेवोस एजेंडा की 2022 की स्पीच में बताया है। P3 अप्रोच प्रो प्लैनेट पीपल, मतलब वो लोग जो प्लैनेट के प्रो काम करते हैं, मतलब प्लैनेट की हेल्थ के अच्छे के लिए काम करते हैं। हम लोगों को अपनी अप्रोच में ऐसा देना चाहिए कि पोल्यूशन हमें कम करना चाहिए, हमें रिसाइकलिंग ज्यादा करनी चाहिए, हमें रीयूज करनी चाहिए चीजों के लिए। वो हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। जैसे हमारे जो पेरिस क्लाइमेट एजेंडा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो पीपल लेड मूवमेंट होती है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, हम लोग उसे प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच उसको कहते हैं। ठीक है, सो यहां तक ठीक है, आगे चले। यस सर। हाँ, तो डेवोस एजेंडा क्या चीज है, इसमें बस एक बार ये समझ लो, ये इसमें आ सकता है मेरे ख्याल से, प्री के लिए मेनली आ सकता है। डेवोस एजेंडा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक वो है, क्या बोले, एक टाइप की कॉन्फ्रेंस ही समझ लीजिए डेवोस एजेंडा को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे कंडक्ट करता है, जिसमें ग्लोबल लीडर्स, ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स, ग्लोबल बिजनेस लीडर्स या एक्टिविस्ट जो मेन होते हैं, वो आके यहाँ पे अपने पब्लिक जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं उसे बनाते हैं और ये एग्री करते हैं कि ठीक है, ओवरऑल वी विल टॉक लाइक दिस। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वी नीड टू बी प्रो प्लैनेट पीपल, वी नीड टू अडैप्ट प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच। तो इससे क्या होगा कि इंटरनेशनली एक ये मैसेज जाएगा कि हमें सस्टेनेबिलिटी लेके आनी है अपने एक्शंस के अंदर। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फाइन, ठीक है, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, NTTM। इसकी डिटेल्स बाद में जानते हैं, पहले कोई मुझे एक्सप्लेन करो कि टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं। What are technical textiles? Anyone? चलो फिर इसकी एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लो आप लोग, फायदा आ जाएगा। प्रोबेबली मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है NTTM के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। सर हिंदी में बताइए। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर दोज दैट आर मैन्युफैक्चर्ड for technical and functional performance and not for aesthetic purposes. Not for aesthetic purposes. सर टेक्निकल एंड फंक्शनल के बाद क्या है? Technical and functional performance and not for aesthetic purposes.
Technical textiles are those that are manufactured for technical and functional performance and not for aesthetic purposes. सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। लिख लिया? सर डेफिनेशन ही बता दीजिए सर। सॉरी क्या कह रहे हैं? बोल रहा हूँ सर डेफिनेशन ही हिंदी में बता दीजिए। डेफिनेशन हिंदी में यार आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीज है ये, और हिंदी में आई डोंट थिंक कि वर्ड्स आई विल बी एबल टू गेट इट। मैं समझा देता हूँ, आप अपने वर्ड्स में लिख लेना। मतलब डेफिनेशन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसकी, बस ये है कि ये बहुत इजी वर्ड्स में मैंने इसमें बनाई हुई। तो एक्सप्लेन करूं? लिख लिया सबने? यस यस सर। टेक्सटाइल्स जो होते हैं हमारे, टेक्सटाइल मतलब कपड़े। कपड़े किस लिए यूज होते हैं? फॉर अगर हम जनरल टर्म में देखें तो वो, जैसे मैंने शर्ट डाली हुई है, या मैंने जैकेट डाली हुई है, मैंने ट्राउजर्स डाली हुई है, तो ये एस्थेटिक पर्पसेस के लिए होते हैं, ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं? जैसे जिनका एस्थेटिक पर्पस कोई नहीं होता, लेकिन उनका टेक्निकल या कोई फंक्शनल होता है। जैसे आप लोग लेट से हमने पुलिस वाले देखे हैं हमारे सिग्नल्स पे, जो कि रिफ्लेक्टिव वाली जैकेट्स पहन के रखते हैं कि दूर से लाइट पड़ती है तो दिख जाती है। देखे आप लोगों ने? यस सर। वो भी एक टाइप का टेक्सटाइल ही है। सो दैट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। उसी तरह पैराशूट्स है। पैराशूट्स बांध के कोई बंदा कूदता है, तो ये जो पैराशूट किसी कपड़े से बना होता है ना, तो ये भी एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। उसी तरह जो हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट्स होते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले यूज करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आर अगेन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। उसी तरह जो फायरमैन पहनते हैं, फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग होती है ना, फायर रेजिस्टेंट सूट्स जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो इसका मतलब कोई भी वो कपड़ा जो किसी पर्पज के लिए पहना जाए और ना कि फैशन के लिए पहना जाए, उसे टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया है, ताकि इंडिया में ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए और हम लोग ग्लोबल लीडर्स बने इसके अंदर, ताकि हम इससे ग्लोबल एक्सपोर्ट्स रिलेटेड अर्निंग्स अपनी कर पाए। अच्छा, इसका जो इससे रिलेटेड कुछ डेटा लिख लीजिए, ठीक है। तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, मैं उनको ऐसे टीटी लिख रहा हूँ, आप टेक्निकल टेक्सटाइल्स ही लिख लेना आपके फायदे के लिए। वो 13% ऑफ इंडियन मार्केट अभी कवर करते हैं। मेन तो हम सबको पता है कि कॉटन क्लोथिंग इंडिया में चलती है, तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, दे कवर अराउंड 13% ऑफ द इंडियन मार्केट। वेयरएज इन फॉरेन कंट्रीज, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज जो हम बोलते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, हमारी नॉर्डिक कंट्रीज हो गई, उसके अंदर ये रफली 30 to 70% लेती हैं। उनकी जो मार्केट शेयर है डेवलप्ड कंट्रीज में। वो 30 to 70% ये लोग करते हैं। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है या वो ऐसा क्यों करते हैं? देखो, उनको सबको पता है कि जो कॉटन के टेक्सटाइल्स हैं, या इवन फॉर दैट मैटर वुलन के टेक्सटाइल्स हैं, वो लोग इंडिया, बांग्लादेश, चाइना जैसी कंट्री से बहुत इजीली और बहुत सस्ते में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो सस्ते वाला जो टेक्सटाइल होता है, वो तो ये लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और ये चीजें अपने वहां पे बनाते हैं, जिससे कि उनको फायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा वो है, ये डेटा याद रख लेना, कहीं आपको फायदा आ जाएगा। चले आगे चले। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन में बस इतना ही था। इसके फायदे और जो नुकसान है या आगे प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो लोग आप खुद समझ सकते हैं कि इंडिया को एक्सपोर्ट रिलेटेड अर्निंग्स होंगी, या प्रेजेंटली जैसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सबके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं है, तो इससे सबको बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलेंगी। हमारे जो पैराट्रूपर्स होते हैं, उनके लिए पैराशूट्स के कपड़े बनेंगे। जो फायरमैन होते हैं, उनके लिए फायर रेजिस्टेंट क्लोथिंग बनेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग होती है हमारे एनडीआरएफ की बटालियंस या एनडीआरएफ की फोर्सेस के लिए, वो रिफ्लेक्टिव क्लोथिंग बनेगी। हमारे पुलिस वाले जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, उनके लिए ये सब बनेगा। ये सब फायदे आप इजीली लिख सकते हैं।
ठीक है, आगे चले। यस सर। यस सर। Just a second. Yes. So next है oil price rise. ये ऐसा है कि ये लॉन्ग रनिंग टॉपिक है, इसका डेटा हमें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। डेटा एज इन कि प्राइस का डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, इंडिया पे क्या फर्क पड़ता है वो डेटा बस याद रखेंगे। तो हम इसे एज अ ओवरऑल टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑयल प्राइस राइज है उसका रीजन क्या है? रीजन हम पढ़ते हैं डिमांड सप्लाई में, डिमांड सप्लाई रीजंस। डिमांड तो सबको पता है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है, हमारे व्हीकल्स हैं, बाकी चीजें हैं, उस चीज से जो हमारी डिमांड्स है, यानी सॉरी डिमांड पुश, जो डिमांड पुश फैक्टर्स होते, दो फैक्टर्स होते हैं, आई होप यू ऑल विल बी नोइंग। डिमांड सॉरी डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश, ठीक है। तो डिमांड पुल क्या होता है कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज की एनर्जी नीड्स है, जो व्हीकुलर नीड्स है, ट्रांसपोर्टेशनल नीड्स है, वो चीज सारी की सारी डिमांड पुल करती है। तो एक तो इशू आप वही लिख लीजिए, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड डिमांड फॉर दी कंट्रीज। सेकंड अपना हो गया अपना सप्लाई चेन इश्यूज जो हैं, ड्यू टू इनएफिशिएंसीज इन सप्लाई चेन भी ऑयल की प्राइस राइज हो जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, किसी कंट्रीज में जाके महंगी हो गई, इस सब के रीजन की वजह से। थर्ड है जो स्पेशली आफ्टर कोविड एक आया है, वो है फ्यूल डिमांड ड्यू टू ग्लोबल रिकवरी। जो फ्यूल डिमांड है ग्लोबल रिकवरी की वजह से वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसे आपने देखा होगा कि व्हीकलर सेल्स जो है वो भी अभी ज्यादा होने लग गई है, स्पेशली इन ब्राजील और इंडिया में भी। तो ये भी उसका एक रीजन है, ये डिमांड पुल रीजन है। अब ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अब हम कॉस्ट पुश पे जाते हैं। इसके ना कॉस्ट पुश के जो जनरल फैक्टर्स होते हैं वो तो आप लिख ही लोगे, मैं वो मान के चल रहा हूं। मैं कुछ टेक्निकल रीजंस बता देता हूँ। एक जो यूएसए में शेल गैस की प्रोडक्शन होती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से एनर्जी नीड्स काफी सारी कंट्रीज की होती है। तो जो यूएसए की शेल गैस प्रोडक्शन है इट हैज बीन डिक्रीजिंग ओवर द टाइम, ठीक है, स्पेशली ड्यू टू कोविड और अदर फैक्टर्स। तो शेल गैस की प्रोडक्शन कम हुई तो नेचुरली ऑयल की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसकी फिर कॉस्ट ज्यादा पुश हो जाएगी डिमांड के बढ़ने की वजह से। सेकंड है सेम जैसे यूएस से है उसी तरह रशिया की जो नेचुरल गैस प्रोडक्शन है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है। कोई मुझे बता सकता है वैसे नेचुरल गैस कौन सी गैस होती है? या इसका पेट्रोलियम। मैम सॉरी, पेट्रोलियम इज इट्स नॉट अ गैस, इट इज अ लिक्विड। CNG। CNG सर। CNG is compressed natural gas. I'm So, asking. natural gas something like made from compost and all. हाइड्रोकार्बन से मीथेन पता है आप लोगों को क्या होता है? यस सर, CH4। यस सर। मीथेन गैस को नेचुरल गैस बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CH4। मतलब ये एक बार ये आपको ना नोट्स पे भी लिखा दिख जाएगा या एक दो पेपर्स में भी मैंने देखा है, ये चीज इंटरचेंजेबली यूज होती है। तो एक बार बस वैसे ही अपने नॉलेज के लिए देख लेना कि मीथेन को नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो रशिया की नेचुरल गैस प्रोडक्शन भी कम हुई। और तीसरा विंटर्स के अंदर अभी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर विंटर चल रही है, तो विंटर्स की वजह से जो
डिमांड है ऑयल की वो बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी, तो कॉस्ट पुश आ गई उसकी। कोई वैसे सोच के बता सकता है विंटर में ऑयल की जो डिमांड है वो ज्यादा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सर कई जगह पर ना गाड़ी को स्टार्ट ही करके छोड़ देते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के इधर। ठीक है, और बताइए। सर इंजन को हीट होने में टाइम लगता है। ठीक है, वो तो व्हीकुलर हो गया। और बताइए, आप देखते हैं आजकल जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो साइड में जो लोग हैं वो लकड़ी वगैरह जला के कभी कभार बैठे रहते हैं हाथ वगैरह सेकने के लिए। यस सर। हाँ, ये भी एक रीजन है, उसको केरोसिन वगैरह डाल के उस फायर को कभी कभार जलाया जाता है। इंडिया में तो क्योंकि वुड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा और यहाँ ड्राई वुड है तो वुड यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे रशिया है, साइबेरियन रीजन है, नॉर्डिक कंट्रीज है अपनी, फिनलैंड वगैरह हो गए, नॉर्वे हो गया, ये इवन फॉर दैट मैटर कनाडा हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट ऑयल को जलाते हैं, केरोसिन को। तो उसकी वजह से विंटर की वजह से भी ऑयल की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और जो हमारे व्हीकुलर हैं वो तो है ही है। अच्छा, एक जो मेन कॉस्ट पुश का रीजन है वो है कार्टेलाइजेशन बाय OPEC and OPEC plus countries। कार्टेलाइजेशन समझ आ रहा है आप लोगों को? कार्टेलाइजेशन बाय OPEC and OPEC plus countries। नो सर। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं कर देता हूँ, आप ये लिख लीजिए, एक्सप्लेन मैं करता हूँ। जब एक बार लिख लें तो बता देना, फिर मैं इरेज करके बताता हूँ। सर ओपेक में कितने कंट्री है? 5 कंट्री है। यार आई एम नॉट श्योर बट आई बिलीव 13 कंट्रीज है ओपेक में। ओके मैं एक बार आई विल हैव टू चेक, एक सेकंड रुको, कर ही लेते हैं। सर 13 ही है। हाँ, ओपेक प्लस में ये है कि वो आ जाता है, रशिया वगैरह आ जाते हैं और एक वेनेजुएला वगैरह कंट्रीज आ जाती हैं। अच्छा, ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ना वो वियना में है, ऑस्ट्रिया में, ये चीज ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया एज अ कंट्री ओपेक में नहीं है, लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में, क्योंकि इनको लगा कि हमारी कंट्रीज में तो कोई इतनी अच्छी जगह है नहीं, तो चलो ऑस्ट्रिया जाके मजे मार के आएंगे मीटिंग्स के टाइम पे। ये लिख लिया तो बताना। सर लिख लिया। सर लिख लिया। आप लोगों में से नार्कोस किस किसने देखा है वेब सीरीज? सर नॉट फुल सर, हाफ। देखा है ना? पहली बार नाम सुना। तो उसमें ड्रग कार्टेल्स होते हैं, इसका वर्ड है कार्टेल। कार्टेल मतलब कोई भी एक ग्रुप जो कि लोग मोनोपोली बना लेते हैं आपस में, कि जो करेंगे हम ही करेंगे, सारी प्राइस सब कुछ हम ही कंट्रोल करेंगे। जैसे ऑयल प्रोडक्शन हो रही है, सऊदी अरेबिया में हो रही है, यूएई में हो रही है, वेनेजुएला में हो रही है, ईरान में हो रही है, इराक में हो रही है। यूएसए को अलग रखेंगे, यूएसए वैसे भी इन लोगों के साथ किसी ग्रुप में आएगा नहीं, आना ही नहीं चाहेगा वैसे तो। ये सऊदी अरेबिया मतलब बेसिकली जो हमारा मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशियन रीजन है, और साथ में वेनेजुएला में और कोलंबिया में भी थोड़े से हैं, पर कोलंबिया इनका ओपेक का पार्ट नहीं है। तो ये वाले जो कंट्रीज है ना, इन लोगों ने आपस में ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना के बोला कि वर्ल्ड में जितना भी ऑयल जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, जैसे मान लो कि इंडिया का यूएई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इंडिया ने बोल, और इराक को ले लेते, वैसे इराक के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है हमारे, पर लेट्स से कि ईरान हमें दे रहा है $10 का एक बैरल। वैसे दिस इज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इसको असली डेटा मत मान लेना। मान लो कि इराक बोल रहा है कि भैया मैं तो तुम्हें $10 का एक बैरल दूंगा, तो हम लोगों ने यूएई के साथ अपने रिलेशंस का फायदा उठाया और यूएई को बोला कि भैया आप हमें $8 का दे दो, तो यूएई ने बोला कि ठीक है ले लो आप $8। तो जो वर्ल्ड का ट्रेड है ऑयल के अंदर, ये सारी कंट्रीज तो चली गई आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इन लोगों को समझ आया कि बाकी की कंट्रीज हम लोगों से फायदा न उठा ले, इससे अच्छा हम सारी जो कंट्रीज है एक ग्रुप बना लेते हैं, जो कि बना ओपेक। इसके बाद में और कंट्रीज जुड़ी तो उसको ओपेक प्लस बोल देते हैं।
13 कंट्रीज का ये ग्रुप बना। तो इन लोगों ने बोला कि अब हमारा ग्रुप है और हम सबसे, आप किसी से भी कितना मर्जी ऑयल लो, कैसे भी लो, प्राइस हम लोग ही डिसाइड करेंगे। मतलब थोड़ा बहुत कंट्रीज को इन लोगों ने दी होगी कि तुम थोड़ा बहुत सस्ता महंगा कर सकते हो एज पर योर नीड्स और एज पर योर रिलेशंस विद द कंट्रीज, बट रफली जो वो होगा, क्या बोलते हैं, प्राइस होगा ऑयल का, वो हम ही कंट्रीज करेंगी और सारी की सारी सेम रखेंगी, कोई भी अलग नहीं रखेगा। तो इन लोगों ने कार्टेल बना लिया एक, ठीक है। तो अब कोई भी कंट्री हो, कहीं से भी हो, अगर उन्हें ऑयल खरीदना है तो उसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस सर। Cartelization of the supply by OPEC and OPEC plus countries, it is also a very major reason for अपना ये प्राइस राइज इन ऑयल। अच्छा, इस चीज में ना क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग करोगे तो इसमें एक ये चीज जरूर मेंशन कर देना, एशियन प्रीमियम, ठीक है। जो ये कंट्रीज है जब ऑयल बेचती हैं तो लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज को बेच रही हैं, यूएसए को बेच रही है, मेक्सिको को बेच रही हैं, इनको तो बेच देंगी ये लोग लेट्स से $10 पे। और जब इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा या बाकी की एशियन कंट्रीज आएंगी तो इन्हें बोलेंगे कि नहीं, ये $10 तो तुम दोगे दोगे, साथ में एक एशियन प्रीमियम भी दोगे तुम, तो तुम लोगों के लिए प्राइस हो गई लेट्स से $11.5। हमारी कंट्रीज इन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के पास है, साथ ही तो है हम लोग, सऊदी अरेबिया, इंडिया वगैरह वगैरह, और मेक्सिको, यूएसए वगैरह बहुत ज्यादा दूर है, फिर भी उनको सस्ता दे रहे हैं और हमें महंगा दे रहे हैं बिकॉज ऑफ एशियन प्रीमियम। तो इंडिया ने रिसेंटली इसके खिलाफ काफी आवाज उठाई है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज हम लोग इस कॉन्टिनेंट से करते हैं, आप हमें एक एक्स्ट्रा प्रीमियम डाल रहे हो, so this is not a very good trade practice। तो ये चीज एशियन प्रीमियम एक बार मेंशन कर देना, कहीं भी ऑयल वगैरह का क्वेश्चन आए और इंडिया स्पेसिफिक आए तो इट इज अ वेरी मेजर इशू फॉर इंडिया, ठीक है। इसका एक डेटा आप लोग याद कर लो, मतलब आप लोग अपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में इसको डाल सकते हो कि जो इंडिया इंपोर्ट करता है, तो जो उसका जो पूरा इंपोर्ट बिल है ऑयल, उसका 20% है इंडियाज इंपोर्ट। ठीक है, तो ऑयल का अगर कोई भी प्राइस और इंडिया के पास साइजेबल ऑयल रिजर्व्स नहीं है, ठीक है, मतलब मुंबई हाई में या थोड़ा बहुत गुजरात के मेहसाना रीजन में और असम में अभी वो रिसेंट दिग्बोई वो थी ना, दिग्बोई जो फील्ड थी, गैस फील्ड्स थी असम में, जिसमें रिसेंटली आग लग गई थी, किया सर दिग्बोई असम, यहाँ से भी थोड़ा सा ऑयल आता है बट दिस इज वेरी लेस, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जो वो 20% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल है, तो अगर इसका प्राइस जैसे ही फ्लक्चुएट करेगा वो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालेगा, ठीक है। इरेज कर दें इसे। यस सर ठीक है। अच्छा, एक I was reading the newspaper और इसमें मुझे एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बीच में दिख गया which can be asked in prelims। तो एक बार ये समझ लो, लैंड सब्सिडेंस, लेट्स से ये नॉर्मल लैंड है, हमारी अर्थ है, लैंड सब्सिडेंस मतलब एकदम से ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये एकदम से नीचे सबसाइड कर गया, ठीक है। इसका इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये रिसेंटली एनसीआर रीजन में देखा गया, जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन है, हमारा जो एरिया है दिल्ली और दिल्ली के आसपास का, उसमें देखा गया। उसका मेन रीजन ये है कि जो नीचे ग्राउंड वाटर है ना हमारा, अब मजे से हम लोग यूज तो कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, अब जैसे ये ग्राउंड वाटर हम लोग निकाल लेंगे, लेट्स से यहाँ पे ग्राउंड वाटर खाली हो गया, अभी यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है, यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे जो ऊपर वेट का प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से ये खाली जगह नीचे धंसती जाएगी,
ये नीचे धंसेगी तो ऊपर का रीजन भी नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो ये लैंड सब्सिडेंस अभी एनसीआर रीजन में देखा जा रहा है, और जैसे जैसे हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेज डिप्लीट होते जाएंगे, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड दिस वेस्टर्न यूपी रीजन जो है हमारा, वैसे वैसे लैंड सब्सिडाइज करता जाएगा, सब्साइड करता जाएगा। और जैसे ये करता जाएगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स होंगी वो भी गिरेंगी, रोड्स है वो भी खराब होगी, पहाड़ है वो भी खिसकेंगे, लैंडस्लाइड्स है वो भी ज्यादा अकर होंगी, ठीक है। और दिस इज वन रीजन जो कि मैंने अभी आपको बताया है। इसका जो वर्ल्ड ओवर जो इसके रीजन देखे जा रहे हैं, दैट इज मेनली ड्यू टू जो हमारी ऑयल ड्रिलिंग होती है, जो ऑयल ड्रिलिंग या शेल गैस जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो द सेम फिनोमेना। जब हम बाहर उन रिसोर्सेज को निकाल लेंगे, यहाँ खाली होने की वजह से ऊपर से प्रेशर पड़े और लैंड सबसाइड करता जाएगा। ये चीज मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा देखी गई है, और रशिया में भी बहुत ज्यादा देखी गई है। रशिया जो नेचुरल गैस आर्कटिक रीजन से एक्सट्रैक्ट करता है, तो जो आइस के लेवल्स है ना, एक तो वैसे ही वाटर अपना क्लाइमेट चेंज की वजह से वो कम होते जा रहे हैं, और लैंड सब्सिडेंस की वजह से भी वो कम होते जा रहे हैं। तो अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. एक और चीज रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, मतलब इट हैज बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन एनीथिंग दैट इंडिया हैज एवर सेड, तो वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये रीजन लिया हुआ है पाकिस्तान ने, ये रीजन लिया हुआ है चाइना ने, ये जो हमारे पास बीच में रीजन है, इसको बताएंगे क्या बोलते हैं? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, वेरी गुड। क्या फायदा देता है सियाचिन ग्लेशियर इंडिया को? इसमें सिर्फ फायदा ये है ना, अगर जैसे पाकिस्तान या मतलब चाइना कोई भी अटैक करता है तो हम लोग का जो आर्मी है ना वो ऊपर टॉप पे रहता है। गुड। सियाचिन ग्लेशियर इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन अर्थ। यस सर। ठीक है। क्या होता है कि यहाँ सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर से अगर आप देखेंगे तो 4-5 किलोमीटर बोथ साइड सिर्फ और सिर्फ वैली है। सियाचिन ग्लेशियर ऐसे बीच में उठता है और यहाँ पे पूरे वैलीज है, यहाँ पे लेट्स से पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है। तो अगर कोई भी अटैक करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पोजीशन। तो हम लोगों ने हमेशा से मेंटेन किया है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हम लोगों का इंटीग्रल पार्ट रहा है। और सियाचिन ग्लेशियर पे जो इंडिया ने कब्जा तो मैं नहीं बोलूंगा, हमारा जो हम लोगों ने अपने ट्रूप्स वहां पे बैठा दिए थे, वो बैठाए थे ड्यू टू ऑपरेशन मेघदूत 1984। तब से हमारे जो जवान है वो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर पे है एंड दे मेंटेन देयर प्रेजेंस। तो रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ हैं उन्होंने ये बोला है कि हम लोग सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करने की प्रोसेस को के बारे में सोचना चाहते हैं। नाउ इट इज आई वुडंट से कि अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, बट एक थॉ इन रिलेशंस आप देख सकते हैं इससे कि इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर इंडिया। ठीक है। और कभी भी अगर इंडिया कोई भी ऑफेंसिव लॉन्च करता है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपनी प्रेजेंस मेंटेन रखते हैं। तो अगर हम लोग ये करने वाले हैं तो सियाचिन में हमारी प्रेजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सर आप वो रिपीट कर देंगे, आपने क्या बताया अभी? कब क्या बोल, कहाँ से? सही, ऑपरेशन मेघदूत के बाद। ऑपरेशन मेघदूत में इंडिया ने अपनी यहाँ पे सोल्जर्स की प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी थी। तो जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस यहाँ पर है, जो हमारे रिसेंटली आर्मी के कुछ आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कोई जनरल है, नॉट द आर्मी चीफ,
सॉरी मैंने पहले थोड़ा गलत बोल दिया था, नाउ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो जो हमारे आर्मी के जो जनरल है उन्होंने बोला था कि हम इसको डीमिलिटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारे सोल्जर्स अब हम यहाँ से वापस लेंगे और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाएंगे ताकि ये इंडिया का पार्ट भी रहे और हमें यहाँ पे अपने वो भी ना करने पड़े, क्या बोलते हैं, ट्रूप्स भी ना स्टेशन करना पड़े। बस इसको एक बार अपने दिमाग में रजिस्टर कर लो कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है और कैसे है, बिकॉज सियाचिन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी जो ये गलवान वैली वाला इशू आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 वाले प्रीलिम्स के पेपर में इसकी आई हुई थी कि सियाचिन ग्लेशियर इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो एक बार बस ये ज्योग्राफी इसकी समझ लो। दैट्स इट मेरी तरफ से फॉर टुडे। These are all of the topics that were of importance in the last week. I would like to know कि आप लोगों को किसी चीज में related to current affairs कोई issue आ रहा हो तो in the recent times तो आप discuss कर सकते हैं. Hopefully we'll be able to solve together. So if you have any doubts, you guys can share.